जैसे कि आप जानते हैं कि इन फिजिक्स वी नीड एक्यूरेसी इन ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में एक्यूरेसी बहुत ही जरूरी होती है। वी रिक्वायर टू मेजर लार्ज एज वेल एज स्मॉल डिस्टेंस ऑफ मेजर distance measuring. We are measuring length, breadth, height, radius, etc. with the help of some measuring device. Here we are having one measuring device. This is scale. The scale is uniformly divided scale. Uniformly divided scale. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्केल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर कर सकते हो। लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में आप मेजर कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक फिगर बना के रखी है जो आप देख सकते हो। सपोज आई वांट टू मेजर लेंथ ऑफ अ पेंसिल, सो आई विल प्लेस द पेंसिल एट द जीरो one end of the pencil at the zero place, and then I will see the end point. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंड पॉइंट जो है ये मैंने एक मैग्नीफाई किया हुआ एक फिगर बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये स्केल में 0 से लेके 1, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So I can say 1.8 centimeter. But me and my friend is measuring this pencil's length together, and he or she is saying that the length is 1.84 centimeter. Now one is saying 1.84 centimeter and one is saying 1.85 centimeter. 1.84 centimeter and 1.85 centimeter. So how we will decide that this 0.04 and 0.05 among this, which one measure is correct measure? So here we need accuracy for the second decimal point. So for this accuracy, we need to see a device called vernier calipers. Calipers means measuring device. And before 400 years, in 1631, Piers Vernier has invented this measuring device which is called vernier calipers. So here I am introducing you vernier calipers. If you learn about this vernier calipers very properly, then you will get the idea for traveling microscope, then micrometer screw, and then you will get the idea for spherometer also. That all you are going to learn in 11th standard only. So before introducing this device, I want to say that in this measuring device, you need to see two scale, and that I will show you afterwards how you will get the readings from this. But first of all, let us see the parts of this vernier calipers. Here you can see one scale. This scale is called main scale. In this scale, here you can see the numbers in centimeter and here inch, but mostly in practical lab we will use this centimeter. And you can see this sliding strip. On this, here you can see some
divisions. How many divisions are there? 10 divisions are there. But sometimes here maybe 50 divisions are also there. For here we are having 10 divisions. So the parts of this vernier is, this part is called main scale. This scale is called vernier scale. Here you can see two pair of jaws. These two pair of jaws, the straight edge of the jaws are in the same vertical position, vertical line. In this, you can see these vertical lines are same for both the jaws. Here also. These two, A and B, suppose we call them A, B jaws and C, D jaws. Then A and B jaws are fixed jaws, but C and D are movable. So, and why this line, they are in straight line? Because if we join them, then they will coincide each other, and they will, the zeros of this main scale and this vernier scale will be coincide on each other. Here you can see that the zero of main scale and zero of this vernier scale are on coinciding each other. One more thing is that back side, you can see this metallical strip. If you move this vernier scale, then you are getting one metallic strip which is called tail also. So this, what is the use of this? That we are going to see afterwards. Here, with the help of this vernier calipers, we are going to measure diameter of hollow cylindrical body, this hollow cylindrical body. But before this, we will find out the least count of this vernier calipers. This main scale means this main scale, and this is vernier scale. Vernier scale, if we join the jaws, then we can see that zero coincide on each other. And when we observe it properly, then we can see that vernier scale's 10 divisions equal to 9 centimeter. 9 centimeter. Because on main scale, at 9 centimeter, 10 division of vernier are completed. So we can see that here some distance is there. So what is the least count? Least count means, least count shows us कि कम से कम कितना मेजर कर सकते हैं हम. तो what is the least count of main scale? Least count of main scale is 1 millimeter. That is 0.1 centimeter. तो now हम वर्नियर कैलिपर्स के लिए, वर्नियर स्केल के लिए लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे. तो वर्नियर स्केल के लिए लीस्ट काउंट के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जैसे कि 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD. व्हाट MSD? मेन स्केल डिवीजन, एंड इज इक्वल टू 10 vernier scale division. 10 vernier scale division, as we see here in this figure. This is figure. So 1 VSD is equal to, if 10 VSD is equal to 9 MSD, then it is obvious that 1 VSD is equal to 9 by 10 MSD. So least count is equal to 1 MSD minus 9 by 2. क्योंकि हम अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि इसका लीस्ट काउंट क्या है. तो उसके लिए हमने 1 MSD की वैल्यू माइनस जो 1 VSD की वैल्यू है 9 by 10, उसे
तो 1 minus 9/10, this is 1/10. So here 0.1 millimeter. But in practical, we are going to use centimeters, unit of centimeter. So we can say that 0.1 millimeter is equal to 0.01 centimeter. So now you can understand that least count of this vernier scale is 0.01. So now you are getting that our question was that कि अगर हम पेंसिल को मेजर कर रहे हैं स्केल से, तो हमारे पास यहाँ पे 1.84 और 1.85 ऐसा मेजर आ रहा था। तो हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे एरर कितनी हो सकती है, 1.8 से लेके 1.9 तक की। दैट मीन्स रिजोल्यूशन इसका कम है। पर अगर इसमें देखा जाए तो ये 0.01 सेंटीमीटर का मेजर कर सकता है वर्नियर कैलिपर्स, तो उसका जो रिजोल्यूशन है वो ज्यादा। तो ये इस तरह से अगर लिस्ट काउंट जितना भी कम होता है तो रिजोल्यूशन उसका उतना ही ज्यादा होता है, और इसीलिए हम मैक्सिमम परमिशिएबल एरर कहते हैं उसे। तो मैक्सिमम परमिशिएबल एरर जो है वो कम हो सकती है वर्नियर कैलिपर्स से, जबकि स्केल में वो ज्यादा रहेगी। आगे चल के आप माइक्रोमीटर स्क्रू सीखेंगे, स्फेरोमीटर सीखेंगे, उसमें ये रिजोल्यूशन जो है वो और भी बढ़ेगा, क्योंकि वहां पे लिस्ट काउंट जो है वो और भी कम होगी। तो यहाँ पे ये आपने लिस्ट काउंट के बारे में समझ लिया है। हमें इसमें फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। तो आपने देखा जैसे कि मेन स्केल जो है उसके ऊपर ये सिंपल स्केल ड्रॉ की हुई है। तो सिंपल स्केल की का हमेशा लिस्ट काउंट क्या होता है, या वो मिनिमम कितना मेजर कर सकती है, तो 0.1 सेंटीमीटर। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 0.1 सेंटीमीटर। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि ये वर्नियर स्केल है और वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन है। हाँ, ये हो सकता है कि अलग लैब में आप जाओ तो वहां पे ये 10 की बजाय 50 भी हो सकता है, तो ये 50 डिवीजन का भी वर्नियर कैलिपर्स हो सकता है। तो यहाँ पे 10 डिवीजन का है, तो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीजन 10 लिखे हुए हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको समझाया कि उसका ये फॉर्मूला ही जाएगा कि 1 MSD। 1 MSD मीन्स मेन स्केल डिवीजन। Main scale division is 0.1 centimeter, or N means the number of division on vernier scale are 10. So 0.1 divided by 10. So least count of vernier calipers is 0.01 centimeter. Now यहाँ पे एक और चीज हमें दिखाई दे रही है 4th नंबर पे, the type of error in vernier calipers. तो यहाँ पे जब आप जोस को जॉइंट करोगे तो आपको ध्यान से ये देखना है कि ये जो 0 जो है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड होने चाहिए। अगर वो 0 एक दूसरे पे कोइंसाइड नहीं हो रहे तो हाँ, हमारे पास 0 एरर है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उस समय पे 0 एरर हमें कैसे फाइंड करनी है? 0 एरर 2 प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव 0 एरर या नेगेटिव 0 एरर। तो चलो हम ये भी समझ लेते हैं कि उसे क्या, ये वर्नियर कैलिपर्स में कोई 0 एरर नहीं है, पर अब 0 एरर वाला वर्नियर कैलिपर्स आपके पास आएगा तो आप क्या करोगे, कैसे समझोगे, उसे हम अभी समझते हैं। कि फर्स्ट जो फिगर है, फर्स्ट फिगर में 0 एक दूसरे पे, मीन्स कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 जो है वो एक दूसरे पे कोइंसाइड हो रहा है। पर ये दूसरी जो फिगर है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 0 जो है, वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के 0 से राइट हैंड साइड जा रहा है। तो जब भी ये राइट हैंड साइड जाएगा तो इसे हम पॉजिटिव एरर कहेंगे।
तो इस समय पे हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो हमें ये ध्यान से सारे डिवीजन को देखना पड़ेगा। जब हम बहुत ध्यान से सारे डिवीजन को देखते हैं, आप अभी फिगर देख पा रहे हो, तो यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाला जो वर्नियर का डिवीजन है वो मेन स्केल के कोई भी एक डिवीजन से बराबर कोइंसाइड हो रहा है, बाकी सब जो है वो कोइंसाइड नहीं हो रहे। तो यहाँ पे जो कोइंसाइड हो रहा है नंबर जो है डिवीजन नंबर है 3। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि +3 का यहाँ पे एरर है। तो 0 एरर कितनी है? +3 है। तो आपको क्या करना है फिर? जब भी आपका कोई भी रीडिंग मिलता है आपको, तो वो रीडिंग में से आपको 3 माइनस करना है। जब भी पॉजिटिव एरर होती है तो एंड ऑब्जर्वेशन जब भी लिखते हो तो ऑब्जर्वेशन को करेक्ट करने के लिए उसमें से आपको 3 माइनस करना पड़ता है। तो ये बात हमेशा आप याद रखिए कि अगर पॉजिटिव एरर है तो आपको हमेशा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 डिवीजन का पॉजिटिव एरर है तो आपको -3 हमेशा ऑब्जर्वेशन में से करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आप एक और फिगर देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मेन स्केल जो है वहां पे वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो मेन स्केल के 0 से कोइंसाइड नहीं हो रहा है, पर वो लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे नेगेटिव एरर है। तो फिर से हम वही प्रोसीजर करेंगे कि ये वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है वो एक के बाद एक हम बराबर ऑब्जर्व करते जाएंगे। तो हम जब ऑब्जर्व करते, फर्स्ट वाला नहीं हो रहा है, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फिफ्थ नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज कोइंसाइडिंग विथ मेन स्केल्स डिवीजन। तो मेन स्केल के कोई भी एक डिवीजन से ये फिफ्थ नंबर का डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है। तो वहां पे -0 एरर है तो हम लिखेंगे -5 का एरर है। तो -5 का एरर जो है उसे सॉल्व करने के लिए, आपको करेक्ट करने के लिए ऑब्जर्वेशन जब भी मिलता है उसमें से आपको +5 करना पड़ेगा और +5 करके आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे। तो ये था एरर कि वर्नियर कैलिपर्स में एरर जब भी आता है तब आप क्या करोगे। तो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करते हो तो आपको सबसे पहले आपको लीस्ट काउंट फाइंड करना है वर्नियर कैलिपर्स का। उसके बाद आपको ये देखना है कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, पॉजिटिव या नेगेटिव एरर तो नहीं है, या अगर एरर नहीं है तो ऑब्जर्वेशन टेबल में आप डैश करोगे। अगर एरर है तो कौन से टाइप की एरर है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव लिखोगे। और अगर जब भी ऑब्जर्वेशन आता है पॉजिटिव एरर है तो ऑब्जर्वेशन में से आप उतने नंबर को माइनस करोगे, और अगर नेगेटिव एरर आ रहा है तो आप उसके उतने नंबर को प्लस करोगे। पर आप ये बात और एक बात याद रखोगे कि जब भी आप यहाँ पे जैसे कि -3 करने जा रहे थे तो -3 इंटू लीस्ट काउंट क्या है हमारा 0.01, तो उससे मल्टीप्लाई करके 0.03 आपको माइनस करना है। और यहाँ पे 5 डिवीजन था, तो 5 के लिए आपको 5 इंटू 0.01 मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 होगा। और आपको यहाँ पे नेगेटिव एरर के लिए आपको 0.05 जो है वो आपको प्लस करना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन के अंदर। तो यहाँ पे आपने एरर की बात समझ ली है। अब तो हम अभी ये होलो सिलेंडर का डायामीटर फाइंड करते हैं। यहाँ पे आप 2 प्रकार के जोज देख सकते हो। तो जब भी हमें ये होलो सिलेंडर का आउटर डायामीटर फाइंड करना है तो हम इसे ये 2 जोज के बीच में रखेंगे और फिर कुछ वर्नियर कैलिपर्स में ऊपर स्क्रू भी दिया होता है जिससे आप उसे फिक्स भी कर सकते। यहाँ पे मेरे पास जो वर्नियर कैलिपर्स है उसमें वो फैसिलिटी नहीं है, पर मैं इसे स्थिर रख के यहाँ पे अब मुझे ऑब्जर्वेशन कैसे देखना है वो मैं आपको खास समझाती हूँ। ऑब्जर्वेशन के लिए आप यहाँ पे मेन स्केल पे देखिए। मेन स्केल पे ये वर्नियर स्केल का 0 कहाँ पे आ रहा है वो हम सबसे पहले देखेंगे। अगर आप यहाँ पे
ध्यान से देखोगे तो ये जो 0 है, वर्नियर स्केल का 0 जो है वो ये 1 के बाद 1.8 और 1.9, 1.8 और 1.9 के बीच में दिख रहा है। जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो आपको सबसे पहले आपका अगर टेबुलेशन देखोगे आपकी जर्नल के अंदर, तो वहां पे आपको सबसे पहला ऑब्जर्वेशन मिलेगा, ऑब्जर्वेशन ऑफ मेन स्केल, दैट इज कैपिटल M। वहां पे आप लिखोगे 1.8, 1.8 और 1.9 के बीच में है तो आप हमेशा आगे वाला रीडिंग लोगे, 1.8 लिखोगे। तो मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया हमारा 1.8। अब हमें क्या करना है, एक के बाद एक ये वर्नियर स्केल के जो डिवीजन है उसे ऑब्जर्व करते जाना है। एक के बाद एक आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको कोई एक डिवीजन जो है वो मेन स्केल के कोई भी एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड होता हुआ दिखेगा। वो जो कोइंसाइड होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है जिसे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको ध्यान समझ में आएगा कि जैसे कि ये कोई रीडिंग है जिसमें 2 के बाद 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, 2.5 और 2.6 के बीच में मेन स्केल है। तो यहाँ पे पहला रीडिंग मतलब कि मेन स्केल रीडिंग क्या हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर मेन स्केल रीडिंग हुआ। बाद में एक के बाद एक वर्नियर स्केल का डिवीजन ऑब्जर्व करते गए तो यहाँ पे मुझे 5th वाला नंबर जो है 5 नंबर का डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का, वो कोई भी एक मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड होता हुआ दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगी, वर्नियर स्केल रीडिंग में क्या लिखूंगी 5। तो आपके ऑब्जर्वेशन टेबल में दूसरा जो है वो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन, तो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है 5 है, और उसे लिस्ट काउंट के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.01 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0.05 जो है वो वर्नियर स्केल रीडिंग मिल रहा है। तो मेन स्केल के रीडिंग के साथ वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.55 सेंटीमीटर। उसी तरह यहाँ पे इसी तरह हमें ये मेन स्केल रीडिंग लेना है और वर्नियर स्केल रीडिंग लेना है। एक रीडिंग ले लेने के बाद आप इसे जो आपके पास सिलेंडर है उसे आप घुमा लोगे, कहीं और पोजीशन पे आप रख एक रीडिंग लोगे। इस तरह से आपको 3 रीडिंग कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आप आउटर, ये हमने आउटर डायमीटर के लिए किया। अगर इनर डायमीटर किसी होलो ऑब्जेक्ट का इनर डायमीटर हमें फाइंड करना है तो हम ये अपर जॉज का यूज करें। इस तरह से फिक्स करेंगे होलो सिलेंडर को और फिर हम फिर से वही प्रोसीजर मतलब कि मेन स्केल रीडिंग लेंगे और वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। इस तरह से इसके भी 3 रीडिंग लेंगे। तो इस तरह से हम होलो सिलेंडर का इनर डायमीटर भी फाइंड कर सकेंगे और आउटर डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद स्फीयर, अगर स्फेरिकल ये बॉब है मेरे पास तो ये बॉब को मैं इस तरह से 2 जॉज के बीच में फिक्स करूंगी। इस तरह से ये फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन सेम प्रोसीजर मेन स्केल रीडिंग लूंगी। यहाँ पे 2.4 और 2.45 के बीच में आ रहा है तो 2.4 होगा। उसके बाद कौन सा वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रहा है वो मैं फाइंड करूंगी, काउंट से मल्टीप्लाई करूंगी और देन आई विल ऐड टू मेन स्केल रीडिंग, देन आई विल गेट द माय रीडिंग। इस तरह से इसके भी हम 3 रीडिंग लेंगे और 3 रीडिंग लेने के बाद उसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये रीडिंग्स लेके रखे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन टेबल है। एक्चुअली आपके जर्नल के अंदर
यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में सिर्फ ये तीन नंबर ही दिए हुए सीरियल नंबर, बट मैंने यहाँ पे डायमीटर, इनर डायमीटर और स्फीयर के लिए, तीनों के लिए मैंने ये एक ही टेबल यूज किया है। आप भी इस तरह का टेबल अपनी रफ नोटबुक में तैयार करोगे, ये मैं आपको शेयर करूंगी। अभी यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन टेबल आप देख पा रहे हो, जैसे कि आउटर डायामीटर के लिए हमने जो आउटर डायामीटर के लिए हमने जो ऑब्जर्वेशन किए थे, मेन ऑब्जर्वेशन ऑफ मेन स्केल की, मतलब कि जो वर्नियर स्केल का 0 जो है वो मेन स्केल के कौन से डिवीजन के साथ था, तो वहां पे 1.8 सेंटीमीटर, यहाँ पे दूसरी बार मेरा 2 आया, 1.8 अगेन, पर जो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन जो है वो मैंने फाइंड किया हर बार, तो ये अलग अलग आ रहा है, उसे मैंने n into PC, PC means वर्नियर लीस्ट काउंट, सो या वर्नियर कांस्टेंट, उसे वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो और या फिर यहाँ पे आप लीस्ट काउंट भी लिख सकते हैं। याद रखो कि फिजिक्स में आपको जर्नल लेके ही प्रैक्टिकल लैब में जाना है, पर जर्नल आपके साथ प्रैक्टिकल करते वक्त वो आपको ये सारे जो टेबल्स है, कैलकुलेशंस जो है, ऑब्जर्वेशंस है, वो सारे अपने आप ही लिखने होते हैं। सर्किट वाले प्रैक्टिकल हो तो सर्किट भी आपको खुद ड्रॉ करनी होती है, तो प्लीज आप अभी से थोड़ी तैयारी करें कि ये सारे ऑब्जर्वेशन टेबल जो है वो अच्छे से समझे, ताकि आप अपने आप ये टेबल लिख सको। तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने की नंबर ऑफ डिवीजन को, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, उससे हमने फिर लास्ट में m plus b, m means main scale reading और फिर b is vernier scale reading, उससे हमने ऐड कर दिया तो हमें ये पहला, दूसरा और तीसरा डायमीटर मिला। उससे मैंने फिर मीन मेजर डायमीटर d0 ना दे दिया, d1 plus d2 plus d3 by 2, तो 1.91 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो मुझे आउटर डायमीटर ऑफ दैट होलो सिलेंडर इज 1.91 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक और चीज आप देख पा रहे हो, करेक्टेड डायामीटर इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू d0 प्लस और माइनस c, c इज करेक्शन, जैसे कि मैंने बताया पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, नेगेटिव है तो माइनस आएगा, पर अगर पॉजिटिव एरर है तो यहाँ पे आप उसे माइनस करोगे, और अगर नेगेटिव एरर है तो यहाँ पे आप उसे प्लस करोगे और उसे लिखोगे। पर जैसे कि हमने जो प्रैक्टिकल किया है उसमें वो वर्नियर कैलिपर्स में कोई 0 एरर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसे नहीं कैलकुलेट कर रहे। हमेशा याद रखिए फिजिक्स प्रैक्टिकल में एम, उसके बाद आपको मटेरियल्स, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, देन ऑब्जर्वेशन टेबल, और उसके बाद कैलकुलेशन, और अगर फिगर आ रही है तो ऑब्जर्वेशन टेबल से पहले आपको एक फिगर ड्रॉ करनी होती है, और उसके बाद एंड में रिजल्ट अगर आपने नहीं लिखा है तो 1 मार्क आपका कट हो जाता है, तो इसीलिए आपको रिजल्ट भी लिखना है। डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी इज 1.91 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये लिखेंगे। अभी यहाँ पे एक और, ये प्रैक्टिकल में हमें और एक फाइंड करना था, डायमीटर ऑफ द स्फीयरिकल बॉडी, और स्फीयरिकल बॉडी के लिए हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो ये ऑब्जर्वेशन का मीन वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है और उसे यहाँ पे आपको लिखना है। आपकी जर्नल में सिर्फ आउटर डायमीटर के लिए लिख पाओगे, पर बाकी का इनर डायमीटर और स्फीयर के लिए आपको अपनी एक नोटबुक में लिखना है। इसी प्रैक्टिकल का दूसरा पार्ट जो है वो फिर से एक मीटिंग में आपको समझाऊंगी, जो मैं आपको मैसेज, तो अभी के लिए इतना ही, और ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो आप अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखो, अच्छे से अपनी जर्नल जो है वो कंप्लीट कर।